ইউটিউবারের মুখোশে পাক গুপ্তচর আর এই অভিযোগে গ্রেপ্তার জ্যোতি মালহোত্রা। এই জ্যোতি একাধিকবার আসে কলকাতায়, যায় ব্যারাকপুরেও, শেওড়াফুলিতেও যায়। সেখানে তার সঙ্গী ইউটিউবার সৌমিত ভট্টাচার্য। নামে ইউটিউবার, আসলে পাকিস্তানের চর। এই অভিযোগেই পুলিশের জালে হরিয়ানার হিসারের জ্যোতি রানী মালহোত্রা। Hey guys, what's up? This is your Joe. Welcome to the channel. दिल्ली से शियालदा राजधानी लेके पहुंची शियालदा। এই জ্যোতি একাধিকবার কলকাতাতেও এসেছে, গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায়। फ्लाइट में जाके मैं तो सो जाऊंगी। मॉर्निंग में अगर नींद छूटती है ना तो दिल्ली में শিয়ালদা স্টেশন, কখনো হাওড়া স্টেশন, হাওড়া ব্রিজ, বারাকপুর, শেওড়াফুলি, লিলুয়া, ফেরে কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে। नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। এই সব জায়গার তথ্য কি পাকিস্তানে পাচার করেছে জ্যোতি? সম্প্রতি সে দিল্লি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে শিয়ালদা স্টেশনে নামে। শিয়ালদা স্টেশন ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন, রোজ লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াত। সেই শিয়ালদা স্টেশনে জ্যোতি। শিয়ালদা স্টেশনে জ্যোতির সঙ্গে দেখা করেন ইউটিউবার সৌমিত ভট্টাচার্য। সৌমিতের বাড়ি আসানসোলে। এই সৌমিত জ্যোতির মতো ঘুরে ঘুরে ভিডিও বানান। कहाँ से मिलेगी लोकल हमारी? टोटल कितने प्लेटफॉर्म है वैसे यहाँ पे? है टोटल 18-20 के आसपास है। শিয়ালদা স্টেশন থেকে কল্যাণী সীমান্ত লোকালে ওঠে জ্যোতি, সঙ্গে সৌমিত। खाली खाली अभी तो मस्त। ট্রেন থেকে নেমে তারা যায় বারাকপুরে, বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানে। বিরিয়ানিও খায় দুজন। বারাকপুরে গিয়ে বিরিয়ানি খাওয়াতে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন গোয়েন্দারা। তাদের প্রশ্ন, বারাকপুরে কি শুধুই বিরিয়ানি খেতে গেছিল জ্যোতি? প্রশ্নটা উঠছে কারণ এই বারাকপুরেই রয়েছে সেনার ক্যান্টনমেন্ট। এই কারণেই কি বারাকপুরে যায় জ্যোতি? আমাকে চেন্নাই হয়তো 1 বছর হয়তো হবে। রাম মন্দির যাবে ইনঅগ্রেট হলো লাস্ট ইয়ার, মানে 1 বছর হবে। আমার তো আলাপ ওই ফার্স্ট টাইম আয়োধ্যাতে হয়েছিল, ফটো নিয়েছে বা এরকম আমার চোখের সামনে কিছু করেন যে ক্যান্টনমেন্টের ফটো নিয়েছে। মানে আমরা টোটো ভাড়া করে তো ক্যান্টনমেন্টের থ্রু দিয়ে গেছিলাম, তো আমার সামনেই ছিল টোটো, ভিডিও নিয়েছে বা এরকম নিয়েছে বলে তো আমি তো দেখিনি সেটা। বারাকপুর থেকে লঞ্চে হুগলি নদী পেরিয়ে শেওড়াফুলি যায় জ্যোতি এবং সৌমিত। बहुत ज्यादा रश तो नहीं है अभी शाम के समय। कलकत्ता की स्ट्रीट मार्केट। এই শেওড়াফুলি থেকে 2-3 কিলোমিটার দূরেই রয়েছে সেনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শেওড়াফুলি থেকে লিলুয়া যায় জ্যোতি এবং সৌমিত। সেখানেই বিয়ে ছিল আরেক ইউটিউবার মোহিতের। মেহেন্দি থেকে বিয়ে, 2 দিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিল জ্যোতি, সঙ্গে ছিল মোহিত। কলকাতা में आई, यहाँ का पुचका नहीं खाया। ফুচকা খুব ভালো। জ্যোতি এবং সৌমিত কলকাতায় 2 ব্লগ পার্টনার। কাশ্মীরেও তারা একসঙ্গে। और यहाँ पे हमें मिले हैं ट्रैवल विद सौमित। मिल चुके हैं, इधर बहाना दिखा रहे हैं। 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হত্যা লীলা চালায় পাক জঙ্গিরা। সেই পহেলগাঁওতে একটি রিসর্টে গিয়ে ওঠে জ্যোতি মালহোত্রা। সেই রিসর্টে ছিলেন আরো 2 ব্লগার, ওড়িশার প্রিয়াঙ্কা সেনাপতি এবং আসানসোলের সৌমিত ভট্টাচার্য। कॉफी पी लेते। चियर्स। इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी भूखे। জ্যোতি মালহোত্রা ব্লগারের আড়ালে পাক চর। এই অভিযোগে গ্রেফতার। জ্যোতি একাধিকবার পাকিস্তান গিয়েছে। वेलकम टू पाकिस्तान। ওয়াঘা বর্ডারের নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক, সেটা তার ব্লগ দেখলেই বোঝা যাবে। वेलकम टू पाकिस्तान। क्या हाल है? जी इस्लाम बिल्कुल सब खैरियत। पहले नवंबर में भी आई थी। जी हाँ, नवंबर में नहीं, मैं अप्रैल में आई थी। अप्रैल में जी। काल जी किवे हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, किसी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। এই দেখুন, একজন সাধারণ ব্লগার পাকিস্তানে গিয়ে পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নওয়াজ শরীফের সঙ্গেও দেখা করে জ্যোতি। এটা কিভাবে সম্ভব বলুন তো? একজন সাধারণ ব্লগার, হরিয়ানার মেয়ে, সে কিনা পাকিস্তানে গিয়ে হুজহুদের পার্টিতে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। এর থেকেই সন্দেহ জোরালো হয়, দাল মে কুছ কালা হ্যায়। 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলা চালায় পাক জঙ্গিরা। সারা দেশ তখন বদলার দাবিতে ফুটছে। সেই সময় এনাকে দেখুন, কেক হাতে যাচ্ছেন। এটাই 24 এপ্রিলের ছবি।
দিল্লিতে পাক হাই কমিশনের অফিস, তার সামনে কেক হাতে এই ব্যক্তি কে, কাকে কেক দিতে যাচ্ছিলেন, কি আনন্দে কেক, একটা প্রশ্নের উত্তর দেননি। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? এই ব্যক্তির পাশেও দেখা গেছে জ্যোতিকে। অনেকে বলছেন এটা পাক হাই কমিশনের দেওয়া কোনো পার্টি, সেখানে জ্যোতির সঙ্গে দেখা গেছে পাক হাই কমিশনের কর্মী দানিশকেও। ট্রাভেল ব্লগার, পাক গুপ্তচর, দেশে বিদেশে ঘোরার নামে তথ্য পাচার, গোয়েন্দাদের কড়া নজর এই জ্যোতি মালহোত্রার দিকে। নিউজ 18 বাংলা। আকাশের কেরামতিতে কুপকাত পাক, ভারতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশ, পাক ড্রোন হামলা ব্যর্থ করে আকাশ। আকাশের কেরামতিতে কুপকাত পাক, ভারতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এই আকাশ, পাক ড্রোন হামলায় ব্যর্থ করে আকাশ। मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। जो ड्रोन है पाकिस्तान का, वो जमीन पे नहीं पहुंच पाया। जी जी, सब सिविलियंस एकदम सेफ रहे। ये हमारे आपके पीछे जो रडार्स लगे हैं, इनका ही एक फल है, जो कि हमने उन रडार्स के द्वारा उनके टारगेट्स को डिटेक्ट किया और अपने वेपन सिस्टम के द्वारा उन्हें हवा में उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नेस्ते नाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का परिचय दिया है और इसी कोऑर्डिनेशन में आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इस समय मेरी मौजूदगी एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड जगह पर है जहां पर मैं आपको आकाशतीर की वही कंट्रोल यूनिट दिखा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। दरअसल ये एक यूनिट है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एंगेज करने का काम किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, खासतौर पर आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो किस तरह से जो तमाम डेटा उनके पास आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही 6 नोड वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाए गए थे जिनकी मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से तमाम तरीके के जो एरियल थ्रेट पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें नाकाम किया गया। हमें जानकारी है कि किस तरह से न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने भारत की अलग अलग जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और इसमें आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। ভারতীয় সেনার বিক্রমে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান, পাক হামলায় কড়া জবাব শুরু করেছিল পাকিস্তান, শেষ করেছে ভারত। আখনুরের সেনা ঘাঁটিতে সেই বিক্রমের মহড়া। ভারতীয় সেনার বিক্রমে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান, পাক হামলার কড়া জবাব শুরু করেছিল পাকিস্তান আর শেষ করেছে ভারত। আখনুরের সেনা ঘাঁটিতে সেই বিক্রমের মহড়া। देखिए, मैं शुरुआत में यही बोलूंगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी।
6-7 की दरमियानी रात किस तरीके से एक्शन मोड में भारतीय सेना के जवान आए थे, ये न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन मोड में जब भारतीय सेना के जवान आए थे तो पाकिस्तान पर किस तरीके से दागे थे गोले, उनकी गोली और यहां से गोलों से दिया जा रहा था जवाब। आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी तरह का प्रहार किया है तो इसी तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। भारतीय सेना के एक जवान को लग रहा है 9 अड्डे ध्वस्त हुए, कुछ नहीं हुआ। बहुत अड्डे ध्वस्त करने, उनका कारखाना ध्वस्त करना भी बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। कहां से दिया, कैसे दिया, वहां पर मौजूद हैं। इन तोप के गोलों से दिया। किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा विजुअल्स में कि पहले कमांड दी गई, पहले कमांड व्हीकल से कमांड मिली और यहाँ पर से जवानों ने यहाँ पर गोले दागे गए। एक गोली का जवाब जो है वो गोलों से दिया गया। हर एक नागरिक जो है वो यही कहता था कि पाकिस्तान जब गोलियां दागेगा उनको जवाब जो है वो गोलों से दिए जाएंगे। और 6-7 की दरमियानी रात थी जब आप यहाँ से गोले दाग रहे थे, वहां से भी कोई एक्शन मोड हुआ, उसको किस तरीके से जवाब आपने दिया? जी, वहाँ से एक्शन हुआ था, उन्होंने भी हमारे ऊपर गोले दागे थे। हमने उसको बचते हुए सेफ्टी से हम यहाँ से फायर पार दिया। उनका जो हमारे जो टारगेट था उसको हमने ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव फायर देके उसको निस्ताबूद किया था। जैसे जैसे हमको मिला हमने उसी वहाँ पे फायर किया। अमित शाह ने कहा था कि बड़ा हमला हुआ है और इस हमले को बहुत ही बड़े तरीके से इसका जवाब भी दिया जाएगा, जो कि दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 9 अड्डे ध्वस्त हुए हैं, बाकी अभी और बाकी हैं।